Hello students, I am Dr. Annapurna Dikshit, Assistant Professor, Department of Economics, R.A. Mehla PG College, Varanasi, which is affiliated to Banaras Hindu University. The topic which we are going to discuss today is cost analysis. Now the question arises why we need to study cost. As we know, the firm's profit could not be calculated without knowing the cost of production. So what do we mean by the term cost? As we know, for production of any commodity, the firm has to make certain amount of expenditure. It has to employ so many factors of production for which it has to make payment. For example, if the firm wants to produce car, it will have to employ land, labor, capital, machinery, technology, and so many factors will be involved for the production of cars, for which it will have to make payment. That is called cost. So let's discuss our topic today. Q is function of C is function of Q. Cost is function of output. Cost is function of output. Cost depends on the level of production. If the level of production increases, the cost of the firm also increases. If the level of production decreases, the cost of production also decreases. So we will talk the concepts of cost today. The first one is opportunity cost. Opportunity cost is also known as avasar lagat, though this cost is not calculated in book of accounts. इसे हम लोग book of accounts में दिखाते नहीं हैं, लेकिन it has very important role in planning of a firm. किसी भी फर्म की प्लानिंग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. What do we mean by opportunity cost? It is the opportunity cost of any good is the next best alternative good which is foregone. किसी वस्तु की अवसर लागत वह वैकल्पिक सर्वश्रेष्ठ वस्तु होती है जिसका कि परित्याग किया जाता है. The factors which are involved engaged in production of armaments could be used for the production of car. So the cost of producing armaments is the amount of cars which is sacrificed. We can understand this through a graph, PPC curve. Consumer goods and capital goods. पूंजीगत वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं. As we know, the factors are very scarce. They have alternative uses. But it's not like that we can increase the production of both the goods simultaneously. If we want to increase the production of capital goods, we will have to reduce the production of consumer goods. उपभोक्ता वस्तुओं को यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को कम करना पड़ेगा. कैपिटल गुड्स वो वस्तुएं होती हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, लेकिन कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन को बढ़ाती नहीं है. जैसे मशीनरी इक्विपमेंट का यदि प्रोडक्शन होता है तो वो फर्दर जाकर के प्रोडक्शन को बढ़ाता है. This is the PPC production possibility curve. Production possibility curve shows all combination of goods which can be produced by given factor of production and given technology.
For capital goods, we can use K, K1, K2. Consumer goods, T1, T2, combination A, combination B. Combination A shows that the production of capital goods is OK1 and the production of consumer goods is OT1. If the production of consumer goods is to be increased in the economy, the production of capital goods will have to be decreased. As at combination 8 has been shown that the production of capital goods has been decreased from OK1 to OK2 and in this way the production of consumer goods has been increased. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन का परित्याग करना पड़ता है. तो यहाँ पे the cost of producing T1, T2 consumer goods is the loss of capital goods equal to K1, K2. We can also understand this through another example. Suppose a farmer has piece of land. On that piece of land, he can cultivate two crops. Wheat, we can denote it W1, W2, and potato. P1, P2. मान लेते हैं कि किसी फार्मर के पास में एक पीस ऑफ लैंड है, 1 एकड़ लैंड है, जिसके ऊपर वह वीट भी उगा सकता है, पोटैटो भी उगा सकता है. लेकिन वो यदि पोटैटो को वो वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया हुआ है कि पहले वो ए कॉम्बिनेशन पे वो पोटैटो का P1 प्रोडक्शन कर रहा है और वीट का OW1 प्रोडक्शन कर रहा है. लेकिन यदि वो वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है तो उसे पोटैटो के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा. यहाँ पे उसने पोटैटो के प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन भी दिखा रहा है कि OP2 पोटैटो का प्रोडक्शन कर रहा है, तब वो वीट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करके OW2 कर पा रहा है. तो ये दिखाता है कि फैक्टर्स आर स्कार्स, जिसमें कि हमें एक वस्तु के उत्पादन को सैक्रिफाइस करना पड़ता है दूसरी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए. इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉयमेंट में बनाए रखने के लिए कम से कम उसे उतना मौद्रिक भुगतान करना होगा जितना कि वह किसी अन्य वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकता है. अन्य वैकल्पिक प्रयोग में भी वैकल्पिक प्रयोग तो बहुत सारे हो सकते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम लेते हैं वी टेक ओनली द बेस्ट अल्टरनेटिव विच इज फॉर वन. केवल हम बेस्ट अल्टरनेटिव को ही लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग को ही लेते हैं. तो उसे कम से कम उतना भुगतान करना पड़ेगा जितना कि वह किसी अन्य बेस्ट अल्टरनेटिव में प्राप्त कर सकता है. अदरवाइज वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो करंट एम्प्लॉयमेंट है उसको छोड़ करके वो चला जाएगा. तो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. Explicit and implicit cost. स्पष्ट और अंतर्निहित लागतें. स्पष्ट लागतें क्या होती है? Where there is direct monetary payment to the factors of production, that is called the explicit cost, like purchase of raw material, payment to permanent staff, wages, rent, interest payment, charges, electricity charges, etc. Machinery and equipment, etc. These are called explicit cost. Explicit cost में हम क्या क्या दिखा सकते हैं? We can show wages, salary of permanent staff, purchase of machinery equipment,
interest payment on borrowed capital, on borrowed capital, purchase of raw material, इनके ऊपर जो भी भुगतान किया जाता है, वॉट एवर एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन दीज आइटम्स इज रिगार्डेड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. नाउ implicit cost. Implicit cost is that cost where there is no direct monetary payment. It is if the firm employs its own resources. मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कोई फर्म स्टार्ट करता है, तो वो कोई फर्म स्टार्ट अपनी भूमि पे कर सकता है, साथ ही साथ वो अपनी पूंजी को उसमें लगाएगा. यदि उसके पास में कोई टेक्निकल स्किल्स है, मैनेजमेंट डिग्री है, तो वो अपनी मैनेजमेंट डिग्री को एज ए मैनेजर वो वहां पे काम करके कंट्रोल और मैनेजमेंट में वो लगा सकता है. तो यदि कोई डिग्री होल्डर है, एमबीए डिग्री होल्डर है, मान लीजिए कि उसे कहीं और किसी फॉर्म में काम करता, तो उसे 80,000 के बराबर पर मंथ का पेमेंट उसे सैलरी मिल सकती थी 80,000 के बराबर. दूसरा उसे क्या मिल सकती थी? उसे मिल सकती थी 20,000 के बराबर उसे मिल सकती थी इंटरेस्ट अमाउंट मिल सकता था, जो कि उसने बैंक डिपॉजिट किया था. और यदि उसके पास उसकी खुद की बिल्डिंग थी या फिर कोई लैंड थी, उसका किराया हो सकता है कि वुड बी गेटिंग 40,000 पर मंथ रेंट. सो हियर 1,40,000 ये जो कैलकुलेट किया गया है, दिस इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ द फर्म. कि फर्म के जो अपने रिसोर्सेस फर्म ने एम्प्लॉय किए हैं, उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर आया है वो कहलाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो फर्म जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करेगी तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट को तो देखेगी, साथ ही साथ वो इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी उसमें कैलकुलेट करेगी. इसके बाद में जो आता है दैट इज अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट. अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट. लेखांकन लागत. बुक ऑफ अकाउंट्स में जिस लागत को दिखाया जाता है वो अकाउंटिंग कॉस्ट होती है. अकाउंटिंग कॉस्ट के अंतर्गत केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही शामिल किया जाता है, केवल स्पष्ट लागतों को ही हम अकाउंटिंग कॉस्ट में दिखाते हैं. जैसे कि ये सारे आइटम जो दिखाए गए थे, दीज रिप्रेजेंट द एक्सप्लिसिट cost. So explicit cost is equal to accounting cost. But when we talk about economic cost और आर्थिक लागत, तो आर्थिक लागत के अंतर्गत explicit cost plus implicit cost is equal to इकोनॉमिक कॉस्ट. आर्थिक लागत के अंतर्गत स्पष्ट लागतों को भी शामिल किया जाता है और अंतर्निहित लागतों को भी शामिल किया जाता है. इसलिए जब फर्म के इकोनॉमिक प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है, वी कैन सी हियर इकोनॉमिक प्रॉफिट. So economic profit is equal to TR minus explicit cost plus implicit cost. आर्थिक लाभ बराबर टोटल रिवेन्यू
माइनस एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, तभी फॉर्म के आर्टिकल आपको देखा जा सकता है। इसके बाद में जो लागत आती है वो है आपकी प्राइवेट वर्सेस सोशल कॉस्ट। प्राइवेट वर्सेस सोशल कॉस्ट। निजी बनाम सामाजिक लागत। निजी बनाम सामाजिक लागत। निजी लागत क्या होती है? The expenditure which is incurred by the firm on the production of any particular commodity is called the private cost, which is borne by the firm itself. लेकिन when we जब जो भी फर्म को किसी वस्तु के उत्पादन पर जो भी लागत आती है, जैसे चाहे वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो, वो फर्म को ही बेयर करनी होती है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम बात करते हैं, सोशल कॉस्ट की बात करते हैं, तो सोशल कॉस्ट जो होती है वो सोसाइटी के द्वारा बेयर करनी पड़ती है। किसी भी वस्तु का जो उत्पादन होता है उससे कुछ लाभ भी होते हैं, तो सामाजिक लाभ होते हैं, तो सामाजिक हानियां भी होती हैं। तो सामाजिक लाभ या हानियां कौन बेयर करेगा? वो सोसाइटी बेयर करती है जो उस एरिया, उस लोकेलिटी में होती है। We can understand this through an example like suppose there is a pesticide factory in an area. The whatever cost explicit or implicit that will be borne by the firm itself. लेकिन यदि हम बात करते हैं, यदि पेस्टिसाइड का जो प्रोडक्शन होगा उस एरिया में, तो उस पेस्टिसाइड के प्रोडक्शन से सर्टेन बाई प्रोडक्ट्स भी क्रिएट होते हैं, जैसे फाउल स्मेल हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, या एफ्लुएंट उससे निकल सकते हैं। तो ये सारा जो होगा वो उस एरिया में रहने वाले लोगों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। तो unless and until social cost is reduced, the social welfare of the society cannot be increased. Thank you, my dear students. I hope you understood the concept. In the next class, we will talk about short-term cost curves. Thank you.